So organization behavior is the paper. If you go through the topics, I would be starting with unit 3, that is communication and motivation. So even in communication and motivation, we'll pick the first one, motivation. ठीक है, communication बाद में करेंगे, पहले motivation देख लेते हैं. तो motivation, what is motivation? Now if you see motivation can be seen from two perspectives. Motivation we can see from two perspectives. One, from organizational viewpoint. From organizational viewpoint. And another from individual's viewpoint. Right? What a common man feels about motivation. क्या लगता है कि आपको क्या कि मोटिवेशन क्या होगा? अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देखें एक मोटिवेशन क्या है और एक इंडिविजुअल की तरफ से देखें मोटिवेशन क्या है, देयर इज अ डिफरेंस. एंड व्हाट इज द डिफरेंस? From organizational viewpoint, it is an act of stimulating, inspiring, people to get their willing contribution, for organizational goals. So it means that organization के लिए motivation क्या है? Organization के लिए motivation है कि if you are able to stimulate people, inspire people so that they can give their willing contribution willing होना बड़ा जरूरी है. And to achieve the organizational goals, to get the organizational goals, because there is a two set of goals, individual goals and organizational goals. Organizational goals जो organization के goals हैं, like market में leader बनना, profit, net worth बढ़ाना, market share बढ़ाना, so all these are organizational goals. और individual के क्या goals हैं? Individual के अपने goals होते हैं. Every individual joins the organization with their own goals. उसको जिंदगी में आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, इज्जत कमाना है. So making money, economic incentives is a goal. Then social goals भी हैं. एक social affiliation भी चाहिए, उसको affection चाहिए, एक then recognition चाहिए, society में इज्जत भी चाहिए. So all these and self actualization. You want to achieve the purpose of your life. So if we broadly divide individual goals, we can say there are economic goals, there are social goals, there are psychological goals. ठीक है, तो वो individual viewpoint से क्या है, उसके लिए motivation क्या है? इंडिविजुअल व्यू पॉइंट से इट्स एन अर्ज. वो उसकी अर्ज है. ठीक है, इट्स एन अर्ज टू डू समथिंग सो दैट यू गेट desired results in the form of individual goals. तो इंडिविजुअल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आया है टू अचीव हिज गोल्स, और ऑर्गेनाइजेशन आपको मोटिवेट कर रही है सो दैट यू कैन कंट्रीब्यूट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. एंड टू टाई बिटवीन individual goals and organizational goals is the act of a leader. मतलब लीडर जो है वो करेगा ये काम, इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को टाई कर देगा. कैसे? वो बोलेगा अच्छा आप एक काम करो, आपका इंडिविजुअल गोल क्या है,
he will understand कि his individual goal is to make money, सैलरी इसकी अच्छी हो जाए. तो मैं उसको बोलूंगा ठीक है तुम्हारी सैलरी का हम 20% हाइक दे देंगे क्योंकि हमारा ये टारगेट आप अचीव कर लीजिए. माई ऑर्गेनाइजेशन हैज अ टारगेट टू अचीव दैट. इफ यू कॉन्ट्रीब्यूट इन अचीविंग दैट टारगेट, हम आपको 10% या 20% सैलरी हाइक दे देंगे. So this is the act of a leader to tie the individual goals and organization goals. लेकिन somebody else is there, his goal is not to make money. वो एक बड़ी अच्छी फैमिली से आता है, from well-to-do family, उसको पैसा नहीं चाहिए. He has come here for reputation, for name and fame. तो he needs higher designation. उसको promotion चाहिए. So he'll say we will promote you. ठीक है, हम आपको promotion दे देंगे अगर आप ये काम करेंगे तो. So different individuals will be offered different incentives. So ये एक रोल है एक लीडर का कि जो इंडिविजुअल गोल्स को समझेगा और फिर टाई कर देगा ऑर्गेनाइजेशन गोल्स से. ठीक है, दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट मोटिवेशन. ठीक है, तो टेक इट डाउन. मोटिवेशन फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स व्यू पॉइंट, from an individual's viewpoint, is a state of willingness. Is a state of willingness and an urge. Is a state of willingness and an urge to contribute. Urge to contribute to get the desired results, in the form of individual goals. These individual goals can be in the form of, these individual goals can be in the form of economic goals, social goals, psychological goals, etc. Though these are the broad category of goals. ठीक है, ये इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बता दिया कि क्या है मोटिवेशन. नेक्स्ट वाला, हाउएवर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल व्यू पॉइंट, motivation is an act of stimulating, inspiring, and pushing people so that they contribute willingly, to achieve the organizational goals. Full stop. These organizational goals can be very diverse, in the form of higher profits, higher net worth, higher market share, brand image in the market,
brand image in the market, etc. राइट? तो ये तो हम समझ गए मोटिवेशन क्या है. अब ये मोटिवेशन होता कैसे है, हाउ दिस मोटिवेशन स्टार्ट्स. सो प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. Now, this process of motivation has to be seen from individual's perspective. कि उसके इंडिविजुअल के लिए वो मोटिवेशन स्टार्ट कैसे होता है, शुरू कैसे होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आप सोचो कि आप कैसे मोटिवेशन शुरू कैसे होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू हैव फेल्ट नीड्स और परसीव्ड नीड्स. So this is the first thing which is very important for a motivation to begin with. Unless and until you have these needs, which you feel that they are the needs, not the actual needs, but the felt needs, perceived needs. The word perception is important here. Perceive means what you feel, right? And then you attach a meaning to something. तो जब हम बोल रहे हैं कि felt needs और perceived needs, हम सीधा needs नहीं बोल रहे हैं, हम felt needs बोल रहे हैं. For example, you may not have money. You may not have money, enough money. So, actually, you may need money, but you don't feel that you need money. So, if your perception is that you don't need money, then you are not motivated by money. आप पैसे से motivation होगा ही नहीं आपको, right? So, word perception is important. So, perceived needs or felt needs are important. कि क्या आपको लगता है कि वो आपको चाहिए? I don't need money, even though I may not have money. So I'm not motivated to make more money. Even if somebody is a billionaire, but he feels that he wants to make more money, so he will still be motivated by money. So felt needs or perceived needs are important, right? Not the actual needs. Now, what these needs do? These needs create an urge. Create an urge or tension. Basically, it's create an urge or tension in this individual. इस इंडिविजुअल को टेंशन हो जाएगी, एक अर्ज हो जाएगी कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे कमाने हैं, ठीक है, या मुझे नाम कमाना है, मुझे इज्जत कमानी है, मुझे शोहरत कमानी है. So these are the felt needs which create an urge. Urge will push you from inside. Will create a tension that कि आपको कुछ करना है, आपको खाली नहीं बैठना है. So when this urge is being created, an individual see the environment. वो कहाँ देखता है? वो environment में देखता है अपने आसपास कि how can I satisfy my urge? How can I satisfy my tension? मैं कैसे इसको satisfy करूं? And in this he finds his organization. उसको दिखाई देती है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे इस एनवायरमेंट में, which has offered me some incentives and some disincentives. Some incentives, some disincentives. मतलब अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, that incentive, बट एट द सेम टाइम सम डिसइंसेंटिव भी है. बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, बड़ा टाइम चाहिए, फैमिली का टाइम निकाल के देना पड़ेगा, घर पे सोना नहीं पड़ेगा, मोबाइल रखना पड़ेगा साइड में. तो ये सारी चीजें डिसइंसेंटिव्स हैं, ठीक है. अब ये जो इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव है इसके बीच में गैप है, ठीक है. ये जो गैप है ये डिसाइड करेगा, अगर आप बैलेंस बना पाए इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव के बीच में कि मुझे ये सेक्रीफाइस करना है, बेसिकली दैट इज अ डिसइंसेंटिव, दैट इट रिक्वायर्स योर टाइम, योर सेक्रीफाइस, एंड इंसेंटिव व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. सो दिस गैप डिसाइड्स योर goal directed behavior. So this will be deciding, this is going to be goal directed
बिहेवियर। और वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होगा कि आप बहुत मेहनत करेंगे, दिन रात काम करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपकी अर्ज है, सबसे पहले दिस इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, एंड दिस प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन बिगिंस विद द फेल्ट नीड्स, ठीक है, परसीव नीड्स, एंड दोज नीड्स क्रिएट एन अर्ज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने की अर्ज ही नहीं है, घर वालों ने भेज दिया है, जिनके ऑब्जेक्टिव्स ही दूसरे हैं, डिग्री मिल जाए कुछ नहीं है, कुछ और देख लेंगे। लेकिन जीवन में याद रखना, बिना पढ़े कुछ मिलेगा नहीं। और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है कि आप कितना आप फील कर रहे हो। और somebody has to be consistently, persistently hard working if you want to achieve something in your life. Otherwise, इतने सारे लोग हैं, जिंदगी जीते हैं, चले जाते हैं, कोई नाम नहीं कमाता, ठीक है। If you want to make mark, then you have to work hard. और चीजों को समझना चाहिए। टीचर्स पढ़ाते हैं यहां पर, समझो, नहीं समझ में आता है पूछो उनसे। So this is what the process is, process of motivation. Take it down. The process of motivation begins with the felt or perceived needs. The felt or perceived needs which an individual may be having. The word perception is important here. The word perception is important here because the individual may not have something say money, but in his perception, whatever money he has is enough for him, and thus he feels that he does not need money. Whereas in reality he needs money. ये बात समझ आई कि एक्चुअल में उसको कुछ चाहिए हो या ना चाहिए हो, उसको क्या लगता है वो इंपॉर्टेंट है। Because the motivation comes from within then in that case, because this is a state of willingness. This state of willingness will come only when you feel that yes you need it. नहीं चाहिए वो इंडिविजुअल डिसाइड करेगा उसको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। These felt needs create an urge. Or tension to satisfy those felt needs. Full stop. While doing so, he may see that there is an environment in which there is an organization
in which there is an organization which has offered some incentives, as well as disincentives. Full stop. Incentives in the form of good salary, higher responsibility, respect, recognition, meaningful work, etc. Full stop. On the other hand, disincentive is in the form of efforts required, sacrifice required in terms of time, energy, and commitment. Time, energy, and commitment on the part of the individual. Full stop. The individual would assess these incentives and disincentives and would give the goal directed behavior. अब वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, उसकी हार्ड वर्क हो सकता है जो वो कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, whatever he is doing it. If he feels that disincentives are more, उसको लगता है कि अगर टाइम बहुत चाहिए, सेक्रीफाइस बहुत चाहिए, कमिटमेंट बहुत चाहिए और सैलरी और इतना ज्यादा नहीं है, he will not be motivated. So in order to be motivation, the incentives must be greater than the disincentives. Then only you will be motivated, otherwise not. ठीक है, ये ध्यान रखना. So what you have understood, what is motivation and what is the process of motivation. Now the next topic, the subtopic is motivation theories. और आपके सिलेबस में ना बड़ा मतलब हफाजत तरीके से दिया हुआ है. If you see theories of motivation, so what I would do, I would actually explain you theories of motivation. जैसे समझो कि IIMs में बताते हैं, ऐसे उसी तरीके से बताएंगे. ठीक है, किसी भी लेवल पे आपको इससे ज्यादा मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा. ठीक है, एंड यू पिकअप ओनली विच इज सुटेबल इन योर सिलेबस. आप वो देखिए कि आपके सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम वही चीज कर लेंगे. तो थियरीज ऑफ मोटिवेशन जो है, बेसिकली थियरी क्या होती है, थियरी क्या होती क्या है, हाउ वी डिफाइन थियरी. हम कह रहे हैं कि ये थियरी है जी, कोई भी थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, थियरी ऑफ मोटिवेशन है, थियरी ऑफ लीडरशिप है, तो ये थियरी क्या होती है. हाउ कैन वी डिफाइन थियरी. थियरी कैन बी डिफाइंड एज एनी कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ आइडियाज, concepts, principles, एक कलेक्शन है, एक सेट है, एक सेट ऑफ आइडियाज, कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स विच टेल. अब यहां पे सारी चीजें चेंज हो जाएंगी. अगर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है तो हमारा क्या हो जाएगा, it's a set of idea, concepts and principles which tell how to run and manage the organization efficiently and effectively.
ठीक है, वो ऐसा कॉन्सेप्ट, एक कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स विच टेल हाउ टू रन एंड मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गई ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। अगर हम बोले मोटिवेशन थ्योरी क्या है, इट्स अ सेट ऑफ आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स विच टेल हाउ टू मोटिवेट एन इंडिविजुअल। How to motivate an individual or how motivation takes place. Or what motivates an individual. ये तीन चीजों के हमें आंसर मिल जाएंगे अगर हम ये बोलें कि ये मोटिवेशन थियरी को हम डिफाइन कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं लीडरशिप थ्योरी, तो लीडरशिप थ्योरी को हाउ कैन यू डिफाइन? लीडरशिप थ्योरी इज अ सेट ऑफ आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स which tell how to be an effective leader. How to be an effective leader. ठीक है, एक इफेक्टिव लीडर कैसे हो सकता है, तो वो एक आइडिया जो बता रहे हैं वो लीडरशिप थ्योरीज हो गई। आप कैसे किसी को मोटिवेट कर सकते हो, कैसे मोटिवेशन होता है, क्या चीज मोटिवेट करती है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हाउ टू मोटिवेट एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे मोटिवेशन होता है या क्या मोटिवेट करता है। सो व्हाट मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल, हाउ मोटिवेशन टेक्स प्लेस एंड हाउ टू मोटिवेट एन इंडिविजुअल। सो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दिस मैन, that how this man is going to be motivated, right? So when you understand this कि ये कैसे हम बात कर रहे हैं, तो हम theories of motivation को हम डिवाइड कर लेते हैं regarding different school of thoughts. अलग अलग लोगों ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग थियरीज दी हैं मोटिवेशन के बारे में। तो अगर हम बोले कि थियरीज ऑफ मोटिवेशन, ये समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले कैटेगरी जो आती है मोटिवेशन थियरीज की, वो आती है नीड थियरीज। नीड थियरीज और कंटेंट थियरीज। नीड थियरीज और कंटेंट थियरीज। नाउ इट मींस व्हाट, जब हम बोल रहे हैं नीड और कंटेंट, तो ये थियरीज क्या बताएंगी? ये थियरीज बताएंगी वो नीड क्या है जो मोटिवेट करती है किसी इंडिविजुअल को। सो बेसिकली इट इज टेलिंग यू व्हाट इज दैट कंटेंट और नीड दैट मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो कंटेंट थ्योरी और नीड थ्योरीज क्या हो गई? सेम है। वो बताती है वो कौन सी नीड है जो मोटिवेट करती है किसी इंडिविजुअल को। ठीक है, व्हाट इज दैट कंटेंट विच मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल। आप सभी ने 12th क्लास में अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की सुनी होगी। ठीक है, तो आप ये देखना एक टेस्ट पैरामीटर है कि जो भी एक नीड के बारे में बताए कि अब्राहम मास्लो नीड हायरार्की, तो कौन सी थियरी हो गई? ये नीड थियरी हो गई, कंटेंट थियरी हो गई, क्योंकि ये नीड बता रही है। 5 नीड हैं जो मोटिवेट करती है किसी इंडिविजुअल को। बहुत कम लोगों को पता होगा कि लास्ट में ये 3 नीड्स और ऐड हो गई थी, किसी बुक में मिलेगा भी नहीं आपको। ठीक है, मास्लो इन हिज लेटर डेज ही एडेड 3 मोर लेवल्स इन द हायरार्की। 5 हैं वैसे। वी स्टार्ट फ्रॉम फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड देन वी गो टू सेफ्टी, सिक्योरिटी, सोशल, सेल्फ एस्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इन 5 में मैं आपको बताऊंगा बाद में कि कहां पे 3 नीड्स और ऐड हो गई, मेकिंग द 8 लेवल्स। वो आप अगर सोचो कंक्लूजन में लिख दोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ही कम लोग होंगे जो ऐसे लिखेंगे। सो इफ यू राइट दोस 3 मोर नीड्स यू विल गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स। तो पहले तो ये समझ लो कि नीड थियरीज और कंटेंट थियरीज क्या है। तो ये समझ आ गया आपको? ठीक है, टेक इट डाउन, लिखो। Theories of motivation are the set of ideas. Theories of motivation are the set of ideas, concepts, or principles which
which tell how to motivate an individual, or how motivation takes place, or what is that which motivates an individual, or what is that which motivates an individual. Full stop. Over a period of time, different ideas, thoughts, concepts have been given by different scholars, and those ideas can be categorized into following categories. One, need theories or content theories. First category is need or content theories. Need theories और content theories. अब इसमें कौन कौन सी थियरी आ जाएंगी? सबसे पहले द फाउंडेशन थियरी इज अब्राहम मास्लोज नीड हायरार्की. अब्राहम मास्लोज नीड हायरार्की. ठीक है, तो हम ये क्यों बोल रहे हैं नीड हायरार्की है? क्योंकि इसने भी 5 नीड दी. ठीक है, फिर आता है हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी. हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी. देखो इसमें भी उसने फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने भी 2 नीड्स बोली हैं, need to avoid pain and need to grow psychologically, which are addressed by 2 set of factors, hygiene factors and motivating factors. वो हम बाद में आएंगे. ठीक है, अभी सिर्फ हम देख लें कौन कौन सी थियरीज हैं और आपके सिलेबस में क्या है. नीड और कंटेंट थियरीज में आता क्या क्या है, फिर आप अपना सिलेबस उठा के देना. पहले तो एक काम करो, सिलेबस लो और सिलेबस का पेज लेके, सिलेबस का प्रिंट आउट लेके फर्स्ट पेज पे पेस्ट कर दो. ठीक है, देखो वो अप्रोच छोड़ दो. अगर आपने कुछ करना है, अगर ग्रेजुएशन तक करना है तो ठीक है, आपने जो करना है करो. अगर कुछ आगे करना चाहते हो तो क्लासेस में ध्यान से अटेंड कर लेना. ठीक है, दो आई एम गेटिंग इट रिकॉर्डेड एंड पुटिंग ऑन द यूट्यूब ऑल्सो. कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं इसको बाद में भी. सो हर्ज़बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, देन Clayton Elderfurs ERG theory. Clayton Elderfurs ERG theory, existence, relatedness and growth. 3 नीड बताई इसने, existence, relatedness and growth. ठीक है, डेविड मैक्लेलैंड्स पा थ्योरी, पावर, एफिलिएशन, अचीवमेंट. 3 नीड्स बताई, पावर, एफिलिएशन, अचीवमेंट. ये 3 नीड बताई डेविड मैक्लेलैंड ने. क्लेटन एल्डरफर्ड ने बोला एक्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. ये 3 नीड है. हर्ज़बर्ग ने बोला टू नीड्स है, नीड टू अवॉइड पेन, नीड टू ग्रो साइकोलॉजिकली, विच आर एड्रेस्ड बाय 2 फैक्टर्स. तो 2 फैक्टर थ्योरी हो गई है.
और अब्राहम मास्लो ने बोला कि देयर आर 5 नीड्स, तो ये 5 नीड थ्योरी होगी। अब हमारे सिलेबस में, आपके सिलेबस में सिर्फ ये दो हैं, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यही दो कर लेना, बाकी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा नीड थ्योरीज क्या हैं और कंटेंट थ्योरीज, दे आर सेम बिकॉज दे टेल व्हाट आर द नीड्स व्हिच मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल, व्हाट इज दैट कंटेंट व्हिच मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल। फिर एक दूसरी सेट ऑफ थ्योरीज आती हैं व्हिच आर कॉल्ड एज प्रोसेस थ्योरीज। प्रोसेस थ्योरीज, प्रोसेस थ्योरीज they tell कि anything can motivate, it's not about what is motivating, anything can motivate if the process is complete। उन theories को हम process theories बोलते हैं। वो कहती हैं कि एक motivation एक process से होता है, अगर वो process complete हो गया तो motivation हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ये important नहीं है कि क्या motivation हो रहा है, what motivating, what is motivating, it is what is important is the process। if the process is not completed then motivation will not take place, ठीक है। and the founder contribution came from valence expectancy theory, valence expectancy theory by Victor Vroom, by Victor Vroom। ये विक्टर व्रूम ने दिया वैलेंस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। बेसिकली इसने 3 प्रोसेस बताए, देयर इज अ वैलेंस, देयर इज एक्सपेक्टेंसी एंड देयर इज अ इंस्ट्रूमेंटेलिटी। उसने बोला कि ये तीनों चीजें जो है ना वो मल्टीप्लाई होती हैं आपस में, और अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो मोटिवेशन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आई विल गिव ए ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट इट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। एंड द सेकंड थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी, इज पॉटर एंड लॉलर थ्योरी। Porter and Lawler's theory. This theory is also an extension of Victor Vroom's theory। जो विक्टर व्रूम ने दिया वही थियरी है, उसका एक्सटेंशन है, जिसमें उसने एक इक्विटी को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली थियरीज क्या कर रही है कि भैया प्रोसेस पूरा होगा तो मोटिवेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये थियरीज क्या कर रही है, अगर ये नीड है, अगर ये कंटेंट है, ये मोटिवेट करते हैं किसी इंडिविजुअल को। तो ये 5 नीड हो गई, ये हर वक्त की 2 नीड हो गई, ये 3 हो गई, यहां पर भी 3 हो गई। तो 5, 2, 3, 3 इस तरह की नीड्स को, इनफैक्ट ये जो मास्लो की है ये मेन थ्योरी है, बाकी जो सारी थ्योरीज हैं वो रिकैटेगराइजेशन है मास्लो का। मतलब बाकी लोगों ने मास्लो को पढ़ के फिर उसका रिकैटेगराइजेशन किया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, हम नीड को ऐसे ऐसे भी बांट सकते हैं, ठीक है। गॉट इट। ये होगी प्रोसेस थ्योरीज। उसके बाद आती है बिहेवियरल थ्योरीज। बिहेवियरल थ्योरीज एंड द इंपॉर्टेंट वन फॉर, सो आपके सिलेबस में ये दो हैं, ये नहीं है, प्रोसेस थ्योरीज ही नहीं है। सोचो प्रोसेस थ्योरीज है ही नहीं, मतलब मोटिवेशन क्या पढ़ोगे क्या आप। बिहेवियरल थ्योरीज में जो सबसे फाउंडिंग थ्योरी है वो है डगलस मैकग्रेगर, डगलस मैकग्रेगर थ्योरी वाई, ठीक है। लोग बोलते हैं एक्स एंड वाई, मैं बोलता हूं थ्योरी वाई। पीपल से थ्योरी एक्स एंड वाई, आपकी उसमें भी लिखा होगा एक्स एंड वाई। एक्चुअली मैकग्रेगर ने थ्योरी, मतलब दी तो एक्स और वाई दोनों उसने दी टर्म, ही गेव एक्स एंड वाई, बट मैकग्रेगर वाज एडवोकेट ऑफ थ्योरी वाई। मैकग्रेगर रिजेक्टेड थ्योरी एक्स। क्यों है क्या, बेसिकली मैकग्रेगर को ये लगा कि लोग जो हैं वो, उसने क्लासिकल थिंकर्स को पढ़ा, टेलर पढ़ा, फेयोल पढ़ा, और उसने बोला कि ये लोग ना बड़े प्रिंसिपल्स दिए हैं इन्होंने ऐसे कि सेंट्रलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये सब क्यों ऐसा इस पे फोकस क्यों कर रहे हैं ये, व्हाई दे आर फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, व्हाई दे आर नॉट गिविंग फ्रीडम टू इंडिविजुअल्स। वो ये क्यों नहीं बात करते हैं कि इंडिविजुअल को फ्रीडम दो, इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सेंट्रलाइजेशन की, कॉन्सेंट्रेशन कर दो अथॉरिटी। तो उसने एनालाइज किया और ये पता लगाया कि द क्लासिकल थिंकर्स हैव द नेगेटिव assumptions अबाउट पीपल एट वर्क, कि जितने क्लासिकल थिंकर्स हैं इनको लोगों के, जो पीपल दोज हु वर्क, दे हैव द नेगेटिव assumptions अबाउट दीज पीपल।
क्यों? उनको लगा कि यार ये सेंट्रलाइजेशन बोल रहा है, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको लगता है कि ये नीचे वाले लोग ना काम नहीं करेंगे, दे आर नॉट क्रिएटिव, दे डोंट लाइक टू वर्क। तो उसने बोला कि ये क्लासिकल थिंकर्स की जितनी भी नेगेटिव असम्पशंस हैं अबाउट पीपल एट वर्क, उनको मैं कंपाइल कर रहा हूं, बंडल कर रहा हूं, एंड आई एम पुटिंग दी मार्क एज एक्स। उसने कहा ये मेरी असम्पशंस नहीं है, दीज आर द असम्पशंस ऑफ क्लासिकल थिंकर्स अबाउट पीपल एट वर्क, कि वो ऐसा सोचते हैं कि दे डिसलाइक वर्क, उनको काम पसंद नहीं है। पीपल आर प्रोन टू मिस्टेक्स, दे आर गुलिबल, ठीक है, दे अवॉइड वर्क, दे अवॉइड रेस्पॉन्सिबिलिटी, दे नीड क्लोज सुपरविजन, उनको डंडा पसंद है, उनको ऊपर सर पे बैठो तब वो काम करेंगे, ठीक है। सो ही सेड दैट ऐसा क्लासिकल थिंकर सोचते थे, मैं नहीं सोचता हूं, ऐसा क्लासिकल थिंकर सोचते थे, और उन सबकी असम्पशंस को मैं बंडल करता हूं और उसके ऊपर लिखता हूं एक्स, एंड आई रिजेक्ट एक्स एंड आई गिव नाउ माई थियरी वाई। सो मैग्रेगर की थियरी वाई है। मैग्रेगर ने एक्स और वाई दिया so that x can be rejected and y can be advocated. So he said that now I am giving an alternate set of theory, that is theory y, which is a positive set of assumptions about people at work. मैग्रेगर का आर्ग्यूमेंट था कि if the classical thinkers continue to assume these negative assumptions about people at work, then they would not be able to realize the true potential of people. लोगों के बारे में उनको पता, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो कितने टैलेंटेड हैं, कितने कैलिबर वाले हैं। अगर ऐसा सोचोगे कि नहीं इसको मैं काम नहीं करने देता, यार ये गलत करेगा काम, नहीं तुम मत करो, मैं ही करूंगा, तुम अपना दिमाग मत लगाओ, मैं बोलूंगा वही करना, ये एक बिलीफ है थियरी एक्स में। सो ही रिजेक्टेड दैट आइडिया एंड सेड दैट नाउ आई एम गिविंग माय अल्टरनेट थियरी वाई, व्हिच इज अ पॉजिटिव सेट ऑफ assumptions which says that people are creative, anybody can be creative, it's not only about that only the people those who are sitting at the top are creative. आपने देखा होगा जब मैं घूमता हूं ना यहाँ पे, तो सबको साथ लेके घूमता हूं, नीचे वाले को भी ऊपर वाले को भी, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज, आई अप्लाई ऑल दीज थियरीज, ये सारी थियरीज मैं एडमिनिस्ट्रेशन में लगाता हूं। व्हाई? बिकॉज इसी से मेरे को पता चलता है कि नीचे वाला भी कितनी अच्छी सजेशन देता है कई बार, बिकॉज द पीपल एट द कटिंग एज लेवल दे नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। एंड जैसे एक बार क्या हुआ, मेरी गाड़ी खराब हो गई, नई गाड़ी ली थी और नई गाड़ी में इंजन के ऊपर से ऑयल आ रहा था, तो मैंने कंपनी में ले गया और मैं बोला यार अभी ये गाड़ी ली है और देखो इंजन में ऑयल आ रहा है। तो उन्होंने एक इंजीनियर को बुलाया अपने, और इंजीनियर को बुलाया और इंजीनियर ने बोला कि सर इसको मैं इंस्पेक्शन पे लगाएंगे, आप 4 दिन के लिए छोड़ के जाइए। छोड़ा, उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने कहा सर इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये हमने ठीक कर दिया था, अभी देखो आप चला के अगर कोई प्रॉब्लम आती है। हफ्ता चलाया, फिर वही प्रॉब्लम आ गई, ऑयल आने लगा बाहर इंजन के उस पे से। Then again they said that, then the team of engineers was called. Then there was a person, वहां पे एक पुराना एक बूढ़ा सा व्यक्ति जो वर्कशॉप में काम कर रहे इतने साल से, उसने बोला सर क्या हुआ है? मैंने कहा यार ये गाड़ी में से ना इंजन में से निकल के आ जाता है ऑयल बार बार, और ये सारे इंजीनियर्स ने देख लिया। उसने कहा सर मैं ठीक कर दूं इसको अगर आप कहो तो। मैंने कहा कर दे। उसने कुछ नहीं किया, कैप ली, कैप लेके एक रबर निकाली, अपनी एक अलग से वहां पे लाया, उसकी कटिंग की और उसको एक अलग से उसके साथ एक बाइंड करके और लगा दी कैप। बोला सर अब नहीं निकलेगा ये। एंड वो गाड़ी मैंने 10 साल चलाई और एक बार भी नहीं निकला। सो देन आई वाज फोर्स्ड टू थिंक दैट दिस इज एक्चुअली अ बिलीफ इन थियरी वाई। ये मैग्रेगर का थियरी था कि भाई एनीबडी कैन बी क्रिएटिव, इट इज नॉट ओनली दैट समबडी हु इज आईआईटी, जिसने बीटेक किया, एमटेक किया फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और फ्रॉम मैनेजमेंट किया है आईएम से, ही कैन ओनली बी क्रिएटिव, एनीबडी एट द लोअर लेवल कैन आल्सो बी क्रिएटिव। So you need to have a belief in people. अगर आप लोगों में भरोसा करोगे, so they will deliver. This was theory Y. So this changes. It means belief in theory Y can change the behavior of people. That's why we call it as a behavioral theory also. So do we have this in the syllabus? हमें ये पढ़ना है, तो syllabus पढ़ लो, syllabus पढ़ना जरूरी है. Yes, we have McGregor's theory, right? Then there are contemporary theories. अच्छा, एक थ्योरी और है जिसको मैं बिहेवियरल थ्योरी मानता हूं, लेकिन वो सिलेबस में पता नहीं कहां पे दिया हुआ है। दैट बिहेवियरल थ्योरी, वन ऑफ द थ्योरी इज द बीएफ स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी। बीएफ स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी।
ठीक है, this we will discuss because again this is, some people call it as a process, some people call it as a behavior because it is related to changing the behavior. So this is also there in the syllabus, so we'll do that also. B.F. Skinner's reinforcement theory. Then coming to contemporary theories. Now what do we mean by contemporary theories? देखिए contemporary theories वो होती हैं, contemporary का मतलब क्या होता है? Present times. Contemporary times, present times. So these theories are not, they are not called because these theories are not called contemporary theories because they are given in recent times. They are called contemporary theories because though they may be given in earlier times, but that theory reflect the thinking of organizational managers in contemporary times. तो वो आज के टाइम में बड़ी relevant हैं, वो थिंकिंग को रिप्रेजेंट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स की, इसीलिए हम उसको कंटेम्पररी थियरीज बोल देते हैं. तो इसमें कौन कौन सी थियरीज आएंगी? कंटेम्पररी थियरीज में हम लिख लेते हैं गोल सेटिंग थ्योरी, one is the goal setting theory, that what is important is goal. तो एक गोल सेटिंग थ्योरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है. देन सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, कि ऐसा नहीं है कि आदमी मोटिवेशन, ये गोल सेटिंग थ्योरी तो बोलती है कि गोल विल डिसाइड द मोटिवेशन. आप ऐसा सोचो कि गोल विल डिसाइड द मोटिवेशन, इज इट, मतलब ऐसा सच है क्या कि गोल डिसाइड करेगा मोटिवेशन को? अगर गोल स्टिफ है, चैलेंजिंग है, थ्योरी कहती है कि मोटिवेशन होगा. अगर गोल इजी है तो मोटिवेशन नहीं होगा, ऐसा थ्योरी कहती है. लेकिन हमको लगता है कि यार गलत बोल रही है, इजी में मोटिवेशन ज्यादा होगा, टफ में तो आदमी छोड़ देगा. लेकिन टफ नहीं, चैलेंजिंग, इम्पॉसिबल टास्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं. इम्पॉसिबल टास्क विल नॉट मोटिवेट, टफ टास्क, चैलेंजिंग टास्क विल मोटिवेट. तो इसीलिए क्रिकेट मैच में 434 भी चेज हो जाता है, और जब 120 भी चेज नहीं हो पाता, टारगेट गिर जाते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है. इजी टारगेट देख के कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है एंड यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म. सो दिस थ्योरी बिलीव्स दैट इफ द टास्क, इफ द गोल इज चैलेंजिंग, then people are motivated to excel. So you set the goal. Goal setting का crux क्या होगा कि you set the goal which is challenging and give the feedback. Self determination theory, self determination theory कहती है कि extrinsic goal से मतलब नहीं है, intrinsically आप कितने determined हो वो डिसाइड करेगा आपका मोटिवेशन. कुछ भी हो जाए, बारिश आ रही है, वो देखिए 12th फेल मूवी है ना, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं है, वो इंट्रिंसिक डिटर्मिनेशन थी उसकी कि मैं फेल भी हो गया फिर भी सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो गया, वो एक चैलेंजिंग टास्क है, राइट. सो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी. देन सेल्फ एफिकेसी थ्योरी. Self efficacy theory. How you improve your efficacy? That efficacy is the ability, the belief that yes you can do it, right? Efficacy is the belief that yes you can do it. तो वो कैसे belief आएगा? एल्बर्ट बंडूरा ने ये थ्योरी दी थी regarding how you can increase your self efficacy. तो कैसे कर सकते हैं हम self efficacy, कैसे बढ़ा सकते हैं? आप सोचो कि आपके अंदर belief कैसे आएगा कि yes you can do it? कैसे कर सकते हैं? पेरेंट्स के कहने पे कर सकते हैं? हैं? अगर पेरेंट्स बोले बेटा तू कर सकता है, तेरे अंदर है, या टीचर बोल कि यस यू कैन डू इट, टीचर भी बोल सकते हैं ना. तो वो आपको कैसे आता है अंदर से बिलीफ? हम कभी मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हैं, सुनते हैं, उसकी बातें सुन के रील्स में देखा बड़ा मोटिवेटिंग बातें बोल रहा है तो एकदम इंस्पायर हो गए. सो दोज आर द वेज थ्रू विच यू कैन इंक्रीज योर सेल्फ एफिकेसी. यू कैन इंक्रीज योर सेल्फ एफिकेसी बाय योर फ्रेंड ऑल्सो हु इज एबल टू परफॉर्म. You can increase your self efficacy if you have already done that thing. अगर आपने एक बार वो चीज की है, आप दोबारा भी डिलीवर कर सकते हो, दोबारा भी कर सकते हो, ठीक है. 6 छक्के अगर मार दिए एक बार, तो आपको ये बिलीफ आ जाएगा कि yes I can do it.
तो इट्स सेल्फ एफिकेसी इज ऑल अबाउट द बिलीव दैट यस यू कैन डू इट, दैट कैन कम। वो उसने फॉर्मल वे में 4 चीजें बता दी कि वर्बल परसुएशन होता है कि आपको कोई भी मोटिवेट करे या आपको कोई भी वो बोले कि हाँ, आपके पेरेंट्स बोले या मोटिवेशनल स्पीकर बोले कि यस यू कैन डू इट, या आप ने इनएक्टिव मास्टरी की है, एक बार कर लिया। एक वो देखा है फियर फैक्टर, खतरे के खिलाड़ी टाइप का एक सीरियल टाइप का आता था, है फियर फैक्टर ना, उसमें टास्क देते हैं लोगों को कि ये करो, बड़े मुश्किल से टास्क देते हैं। जो पहला वाला बंदा होता है वो हमेशा हेजिडेंट होता है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और जब भी ऐसे मुश्किल टास्क दिए जाते हैं यू ऑलवेज से कि नहीं मैं दूसरे तीसरे में बाद में करूंगा, पहले मैं दूसरों को देख लूं। क्यों? उसको बोलते हैं वाइकेरियस मॉडलिंग। यू सी हाउ पीपल आर डूइंग इट, और उस देखने के बाद आपको बिलीफ आ जाता है कि हाँ आप कर सकते हो। अगर 10 लोग हैं और वो टास्क जो है, जो पहला व्यक्ति है जिसको बोला जा रहा है तू कर ले, वो कहता है नहीं मैं लास्ट में करूंगा, वो कभी नहीं कर सकता होगा, हो सकता है वो कर ही ना पाए। लेकिन अगर वो 9 लोगों को ये देख ले कि सबने कर लिया तो 10वां वो भी कर जाएगा। ये आपका सेल्फ एफिकेसी का मॉडल है। तो इसीलिए अगर आपके साथ 5 दोस्त ऐसे हैं जो कामयाब हैं तो छठे आप भी हो जाओगे। अगर आपने नालायकों को दोस्त बना लिया है तो आप कितने भी टैलेंटेड हो आप भी उसी गड्ढे में गिरोगे जाके, ठीक है। तो वर्बल परसुएशन भी होता है, सेल्फ एफिकेसी वर्बल परसुएशन भी होता है। ऐसा हुआ कि एक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, देयर वाज अ क्रिकेटर चौहान, वो बॉलर था बेसिकली, पाकिस्तान में मैच हो रहा था, ठीक है। लोगों ने शोर मचाया, ऑडियंस ने शोर मचाया, उसने स्टेप आउट किया और बल्ला घुमा दिया और 6 मार दिया। कभी जिंदगी में नहीं मार सकता वो छक्का, उसने मार दिया। तो वो कैसे आ गया बिलीफ? वो वर्बल परसुएशन, जो उसको बोलते हैं अराउजल स्टेट, एकदम जोश में आ गया वो। सो ये सेल्फ एफिकेसी थ्योरी होगी, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी होगी, गोल सेटिंग थ्योरी होगी। ये ओवरऑल सारी थ्योरीज हैं, ये हमारे सिलेबस में ये वाली तो है, ठीक है। ये वाली भी है, ये वाली भी है, ये वाली भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 थ्योरीज हम कर लेंगे एक एक करके, ठीक है। तो अभी जितना बताया उतना लिख लिया आपने, उसको रिवाइज कर लेना, एंड देन विल मीट नेक्स्ट टाइम। चलिए, थैंक यू।